Namaskar, I am Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So, children, today we are going to study one of the finest poems of modern English literature. The poet is also well known, quite famous. His name is Robert Frost and the name of the poem is The Road Not Taken. So, Robert Frost, he was an American poet born in 1874 and he passed away in 1963. So, it's a well-read poem. In fact, since for generations children have been or we have been reading this poem. One of the finest poem, The Road Not Taken. Let us see the first stanza of this poem. So बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन पोम इंग्लिश लिटरेचर का पढ़ने जा रहे हैं. इस पोम का नाम है द रोड नॉट टेकन और इसके कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जिनका जन्म 1874 में हुआ था और उनका देहावसान 1963 में हुआ था. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक आधुनिक कवि हैं. ही इज़ अ मॉडर्न पोएट एंड ऑल्सो he is a romantic poet. He is a modern poet because of his writing styles and romantic poet because of his sensibilities, the way he depicts real life situations, challenges. So, in his poetry you will find celebration of life also. So, celebration of life makes him a romantic poet and the style of writing makes him a modern poet. Let us see the first stanza of this poem, The Road Not Taken. This is the introduction of the poem. This well-known poem is about making choices. So, children, when you open the book, see the poem, in the heading of the poem, you will find these words, these sentences written that this well-known poem is about making choices, and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. तो जीवन के मसलों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी कविताओं में पोएट ने अंकित किया है. अब देखते हैं इनका पहला स्टेंजा. So the first stanza reads like this. Two roads diverged in a yellow wood. Two roads diverged in a yellow wood. Diverged का मतलब है अलग होना. So दो रास्ते और दो रास्ते एक जगह अलग हो रहे हैं. So two roads diverged, अलग होते हैं. In a yellow wood. और ये जो wood है वो yellow है. कहने का यह मतलब है कि all the leaves of the forest, they are the leaves of the trees on the way, they have grown yellowish or they have become yellow. जंगल के जितने भी पत्ते हैं वो सब के सब उन रास्ते पर जो हैं वो सब के सब पीले पड़ गए हैं. So it tells us that or it indicates us about the autumn season. In autumn season the trees they shed their leaves and the leaves grow येलोइस. तो पत्ते, पेड़ के पत्ते पीले हो जाते हैं. तो उस रास्ते पर या वह रास्ता पेड़ के पत्तों से बिल्कुल ढका हुआ है और जितने भी पत्ते हैं सब के सब पीले पड़ चुके हैं. So this yellow leaves, it also tells us of the people who have grown old also. So it tells about the autumn season. It tells about the aged people, particularly the people who are senior to the poet. जो कवि से उम्र में बड़े हुए लोग हैं, उम्र में बड़े लोग हैं या जो बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं, तो उस तरह के जो लोग हैं उनको भी ये येलो लीव्स दर्शाता है. एट द सेम टाइम इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द ऑटम सीजन. पतझड़ का जो महीना होता है जब पेड़ के पत्ते पीले हो जाते हैं, तो वह रास्ता
जो आगे चलकर दो मार्गों में विभाजित हो जाता है, वह रास्ता पीले पेड़ के पत्तों से ढका पड़ा है। सो टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड and sorry I couldn't travel both. And the poet is really no sorry. The poet says I couldn't travel both. It means दो रास्ते तो हैं, लेकिन पोएट दोनों रास्तों पर एक साथ अपनी यात्रा नहीं कर सकता है। So this is a dilemma, or this is a challenging situation, or you can say this is the reality of life. No, in life one has to choose one way. ज़िंदगी में एक रास्ते को चुनना ही अहम है। तो ज़िंदगी के सफ़र में अगर रास्ता आपने सोच समझ कर चुना है, then it becomes a wonderful journey. So the poet, though there are two ways, and the poet selects one for his maiden journey. So two roads diverged in a yellow wood, and sorry I couldn't travel both. So the poet announces there are two ways, it goes into two different directions. The two ways, they go into two different directions, and sorry I couldn't travel both. And the poet says he doesn't have a choice, that in one time he can travel only one way, and be one traveler, long I stood. So this is what he clarifies in the third line of this stanza, be one traveler, long I stood. कवि ये कहता है कि बहुत ही पहले उसे इस बात की जानकारी मिल गई थी कि एक ही यात्रा करनी है, एक ही रास्ते पर चलना है। And looked down one as far as I could. So therefore the poet looks down. वो अपनी निगाहें रखता है, वो देखता है एक रास्ते को जितनी दूर तक वह देख सकता है, to where it bent in the undergrowth. और आगे चलकर वह रास्ता जब मुड़ता है तो it comes now undergrowth. undergrowth यहाँ बुशेज हैं, जो फॉरेस्ट हैं, जो झाड़ियाँ हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो जहाँ तक वह रास्ता बिल्कुल सीधा है, कभी उसको देखता है। जहाँ से रास्ता मुड़ता है या जब वो झाड़ियों से, जंगलों से गुजरता है, तब वो उसको आगे नहीं देख पाता है। Let us see difficult words of this stanza. Yeah, so one word is diverge. Diverge means अलग होना, बिखरना। आप इसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। या टू गेट सेपरेटेड, हिंदी में कहें तो अलग होना। No? Yeah, so the another word is undergrowth. No? Undergrowth can be referred to dense bushes and plants. जो घने या घनी झाड़ियाँ हो या पौधे हों, मतलब जंगल, घने जंगल का एक हिस्सा है जो अंडरग्रोथ है। सो दीज टू वर्ड्स in the first stanza, and after this we can see in the same stanza, let us see the literary device. So two roads diverged in a yellow wood. No, yellow wood here this yellow wood is also symbolism, at the same time it is also metaphor,
metaphor because it tells us about the aged people. Yeah. So, and sorry I couldn't travel both and be one traveler long I stood. बहुत पहले कवि को यह बात समझ में आ गई थी. And looked down one as far as I could. As far as जहाँ तक वो देख सका था. To where it bent in the undergrowth. So, in this stanza, what did the poet see, or what did the poet say? That the poet is on his maiden journey. कवि अपनी पहली यात्रा पर है. यह यात्रा कोई मामूली यात्रा नहीं है बच्चों. दिस इज इन फैक्ट द जर्नी ऑफ लाइफ. यह जीवन यात्रा है. तो कवि एक मार्ग को देखता है. आगे चलकर वह मार्ग दो हिस्सों में विभाजित होता है. कवि सोचने लगता है कि आखिर वह किस मार्ग पर चले. तो यह इनफैक्ट फॉर ऑल ऑफ यू, आप सभी के लिए, खासकर जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान बच्चे हैं, जिनको जीवन में अभी बहुत आगे जाना है, बहुत सारे मकाम को हासिल करना है, तो उनको इस बात का निर्णय बहुत ही बेहतरीन तरीके से सोच समझ कर लेना होगा, आप सभी को भी. तो पोएट टेक्स अ डिसीजन, अ वेरी फर्म डिसीजन. ही इज नो थिंकिंग अ लॉट दैट व्हिच वे ही शुड चूज. कभी यह सोचता है कि उसे किस मार्ग को चुनना है. तो यहाँ जो टू वेज है वह भी सिंबॉलिज्म है. टू वेज जो है वह सिंबॉलिज्म है. क्योंकि ये दो रास्ते जीवन के रास्ते हैं. येलोड मेटाफर भी है, एज्ड पीपल को रिप्रेजेंट करता है. या सो द पोएट इज थिंकिंग दैट व्हिच वे ही हैज टू चूज, व्हिच वे ही शुड चूज. लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट स्टेंजा of this great poem. Then took the other just as fair. See the first line, what did the poet say? Then took the other. मैंने आपको पहले बताया कि दो रास्ते हैं, उसमें से पोएट एक रास्ते को चूज करता है, एक रास्ते को पसंद करता है, एक रास्ते पर चलने का निर्णय करता है. So then took the other, मतलब दो रास्ते हैं और उस दूसरे रास्ते पर चलने का पोएट निर्णय करता है. जस्ट एज फेयर, जस्ट एज फेयर. अब एज फेयर यहाँ आप देखें तो एज फेयर है. एज का जो इस्तेमाल है यहाँ, जो पोएटिक डिवाइस का उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसे सिमिली कहते हैं. नहीं, एज, सच, फॉर, ये सारे सिमिली के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. एंड टुक द अदर जस्ट एज फेयर. पोएट यह सोचता है कि दोनों मार्ग तो एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वह एक को चुनता है. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. और जो निर्णय वह लेता है, जो विचार वह करता है, जिस अंजाम पर वह पहुंचता है, पोएट ये कहता है कि परहैप्स इट वाज अ बेटर क्लेम, परहैप्स इट वाज अ बेटर चॉइस द वे ही चोज टू वॉक ऑन. Because it was grassy and wanted wear. Children, you can ask me this question, that why the poet chose the other way. आप यह सवाल मुझसे कर सकते हैं कि पोएट ने आखिर दूसरा रास्ता क्यों चुना. उसके जवाब में पोएट ये कहता है कि यह निर्णय शायद उसका बेहतर था. फिर उसको एक्सप्लेन करता है. Because it was grassy and wanted wear. पोएट कहता है कि जिस रास्ते को वह चुनता है वह ग्रासी है, उस पर घास उगे हुए हैं. और वांटेड wear का मतलब यहाँ है कि लोग उस पर चले नहीं हैं. सो द वे which the poet chose was less trodden. Very few people would have walked on that way. So it was grassy and wanted wear. And this is the reason that the poet chose that other way. Though as for that, the passing there had warned them really about the same.
Let us read once more this stanza. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. So when the poet goes closer to the way, he finds almost in the same way. He finds both the ways in fact appear to him in the similar way. But in fact the way which he chose deliberately, the way was less trodden. जिस रास्ते को पोएट ने चुना वह लेस ट्रॉडन था, उस पर बहुत कम लोग या नहीं के बराबर ही लोग उस पर चले हुए थे। मतलब वह एक ऐसा रास्ता था जिस पर लोग अभी चले नहीं थे। तो कवि ने अपनी ज़िंदगी के सफ़र में उस रास्ते को चुनता है जिस पर लोग अभी नहीं चले हैं। कहने का यह मतलब है कि द पोएट इज़ वेरी करेजियस, he takes a very bold decision, and the decision which he takes is that he wants to invent his own way of life. कवि अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से, एक नए तरीके से बिताना चाहता है, एक नए तरीके से जीना चाहता है। इसलिए वह बिल्कुल ही एक नए मार्ग पर प्रशस्त होता है, नए मार्ग पर चलता है। यह बात बिल्कुल स्वाभाविक है कि नए मार्ग में बहुत सारे चैलेंजेज होते हैं, लेकिन ये जो चैलेंजेज होते हैं ये आपकी एबिलिटी को, आपके पोटेंशियल को, आप में जो योग्यता है, आप में जो शक्ति है, आप में जो ऊर्जा है, आप में जो प्रतिभा है, उसको भी उजागर करता है, उसको भी निखारता है। तो अगर ज़िंदगी में अपनी पहचान, अपना वजूद कायम करना हो तो हर किसी को एक नए मार्ग पर चलना पड़ेगा। बनी बनाई रास्ते से चलने में सिर्फ आदमी मुसाफिर बनकर रह जाता है, या उसको यूँ कहें तो हिंदी में एक बहुत पुरानी कहावत है, चला बहुत पहुँचा कहीं नहीं, walked a lot, reached nowhere. So the poet challenges this idiom and he invents a new way of life. और ज़िंदगी का एक नया रास्ता कवि चुनता है और उस पर चलने की ख्वाहिश रखता है, उस पर चलने का प्लान करता है। So let us see some poetic device. As fair it is simile, and have perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. So children, you can also understand the rhyming scheme of the poem. See the last word of all the lines, fair, claim, wear. No, rhyming scheme is, first word is fair, so you can write A, claim, it is B, wear, it is again A, there, it is again A, and same is again B. So this is the rhyming scheme of the poem. Of every stanza you will find the first word fair, it rhymes with the third word wear. Similarly, claim, the second word, it rhymes with another word. So the rhyming scheme of the poem is a, b, a, and b. So this is the rhyming scheme of the poem. यह poem का rhyming scheme है. And both that morning equally lay, and both that morning equally lay, दोनों रास्ते बराबर दिखते थे पोएट को उस सुबह. In leaves no step had trodden black, in leaves no step had trodden black. कोई भी पेड़ का पत्ता जो भी था सब के सब हरे भरे दिखते थे, जो भी गिरे हुए थे. इसका मतलब यह है कोई काला नहीं दिखता था, मतलब कोई आदमी उसके ऊपर से गुजरा नहीं था, चला नहीं था, सारे पत्ते फ्रेश थे. इसलिए पोएट कहता है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, दोनों रास्ते समान रूप से उस सुबह दिखते थे. ओह आई केप्ट, ओह आई केप्ट. अब ये जो ओह शब्द जो है, यहाँ जो पोएटिक डिवाइस है वह है ओनोमाटोपिया. इसको पढ़ते हैं ओनोमाटोपिया. अब इसको ओनोमाटोपिया कहते हैं इसलिए यह एक पोएटिक डिवाइस है. अब ओह ये एक साउंड है,
तो जो वर्ड वैसा ही साउंड करता है जैसा उसका मीनिंग है, उच्चारण उसका वैसा ही लगता है जो उसका अर्थ है, तो इस प्रकार के वर्ड को या इस प्रकार के वर्ड के लिए जो पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल होता है उसे ओनोमाटोपिया कहते हैं। सो ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। पोएट कहता है कि जो पहला रास्ता था उसको मैंने दूसरे दिन के लिए रखा। और बच्चों, आप बता सकते हैं कि वह पहला रास्ता कौन सा था? पहला रास्ता वही था जो थॉरोफेयर था, जिस पर आम लोग बरसों से गुजर रहे होंगे। तो पोएट ने उसको दूसरे दिन के लिए रखा। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। जबकि मुझे ये मालूम था कि रास्ते से रास्ते कैसे निकलते हैं। आई डाउट इट, पोएट कहता है आई डाउट इट, उसे इस बात का शक है, शुभ है। इफ़ आई शुड एवर कम बैक, पोएट को इस बात का शक है कि वह दोबारा फिर वो वापस उस रास्ते पर चलने के लिए आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ जो समझने की बात यह है बच्चों की, इसे यूँ समझें, लाइफ इज वन वे ट्रैफिक। ज़िंदगी का जो सफ़र है वह वन वे है। गुजरे हुए वक्त कभी वापस नहीं आते हैं। तो जीवन के मार्ग को चुनने के लिए जब हम निर्णय लेते हैं तो हमें एक बेहतर तरीके से, काफ़ी सूझबूझ के साथ, काफ़ी परिपक्वता के साथ, सोच समझ के साथ वह निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि जो वक्त गुजर जाएगा, जो समय बीत जाएगा, जो मुकाम छूट जाएगा, वह फिर दोबारा नहीं मिलता है। सो देयरफॉर द पोएट इज ऑलमोस्ट सर्टेन, because he is doubtful here that he will never come back to walk on the second way, but somehow he says, I have kept that way for another day. And the poet has chosen the way which is less trodden, which is less traveled. Very few people have stepped over that way, and the poet has deliberately chosen that way to make his journey quite adventurous, to make his journey quite new, to make his journey quite fruitful. So therefore, in the journey of life, children, ज़िंदगी के सफ़र में हर किसी को ऐसा ही रोल प्ले करना चाहिए। क्योंकि हमें अपने ही मार्ग चुनने पड़ेंगे, हमें अपने ही बनाए रास्ते पर चलने पड़ेंगे। तो हमारे रास्ते कैसे होंगे इसका निर्णय भी हमें खुद ही लेने पड़ेंगे। So let us see the next stanza of this poem. So perhaps this is the last stanza, dear students, and it divulges everything. It tells you everything about the poem, about the mental frame of the poet. यह जो लास्ट stanza है यह पोएम का निचोड़ कहें तो निचोड़ है। यहाँ पोएट के बारे में भी पता चलता है, पोएट की मानसिक स्थिति क्या है, पोएट की मनसा क्या है, पोएट की अपील क्या है, वह हमसे क्या कहना चाहता है। इस बात की जानकारी हमें इसी स्टेंजा में मिलती है। देखें, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई। पोएट कहता है आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई। विथ सैडनेस द पोएट इज सेइंग दिस थिंग। एक उदासी से, गम में पोएट हमें यह लाइन कहता है, समवेयर एजेज एंड एजेज हैंड्स, समवेयर एजेज एंड एजेज हैंड्स। अब यहाँ देखें तो रेपिटेशन भी है, जो एजेज एंड एजेज है रिपीट हो रहा है। सो आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, समवेयर एजेज एंड एजेज हैंड्स, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। कवि कहता है कि वह थोड़ा सा उदास होकर यह बात कह रहा है। बहुत दिनों के बाद जब वो अपनी बात लोगों से साझा करेगा, जब वो अपनी बात कहेगा, तो वह यह कहानी, ये दास्तान लोगों को सुनाएगा। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, एक जंगल में दो रास्ते निकलते हैं। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस रास्ते को चुना जिस पे बहुत कम लोग जिससे गुजरे थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, and that has made all the difference. See this line is the most important line in this whole poem.
इस पूरी कविता में अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई लाइन है तो यह आखिरी लाइन है, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और इसी ने सारे मतलब सब कुछ बदल के रख दिया। तो यहाँ पोएट चिल्ड्रन ये कहना चाह रहा है कि बच्चों, पोएट यहाँ ये कहना चाह रहा है, यह बताना चाह रहा है कि अभी इसको इस तरह से अगर आप देखें तो जो सृष्टि का निर्माता है हर किसी को अपने अपने तरीके से बनाया है। सारे इंसान जितने भी इस संसार में, इंसान ही नहीं, जीव जंतु, पशु पक्षी, सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं, सबकी अपनी अपनी सीमाएं, सबके रंग रूप सब कुछ अलग अलग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ईश्वर ने सबको अलग अलग एबिलिटीज़ दी हैं। तो हमें अपनी एबिलिटीज़ को पहचानना चाहिए, परखना चाहिए। हम कैसे पहचानेंगे, हम कैसे परखेंगे? जब हम दूसरे के बनाए हुए रास्ते से चलेंगे तो यह तो महज नकल हो गया। तो नकल करने से जीवन सफल कैसे हो सकता है? तो इफ़ यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ, इफ़ यू वांट टू एस्टैब्लिश योर आइडेंटिटी, इफ़ यू वांट टू रिकॉग्नाइज योर ओन पोटेंशियल, then this is essential to discover your own way of life। तो अनिवार्य है इसके लिए कि आप अपनी ज़िंदगी के मार्ग को खुद खोजें, खुद बनाएं और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। सो आई थिंक or I hope that you must have enjoyed this poetry, this poem in fact. It's a wonderful poem, it's an inspirational poem। यह बहुत ही प्रेरणादायी कविता है, इसमें बहुत सी बातें शिक्षाप्रद है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज आप सब इस कविता को ज़रूर एंजॉय किए होंगे, एंड यू मस्ट हैव लर्नड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स फ्रॉम दिस पोम, एंड होपफुली वी शैल मीट अगेन with some new topic. Till then, goodbye, namaskar.